हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लिखत पढ़त और हम हैं आज के तलबा की आवाज़. आई एम मेरुनिसा नयानी एंड दिस इज़ माई को होस्ट ओवेस बलोच. वी हैव मैम अंजुम अजीज़ एंड मानू रियाज इन द स्टूडियो टुडे और आज हम बात करेंगे ड्रेस कोड पॉलिसीज़ के बारे में. सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. लेट्स स्टार्ट. ओवर टू यू वेज. अस्सलाम वालेकुम मैम. Walaikum assalam. How are you? अच्छा मैम, आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm good also. So ma'am, Thank you. firstly tell us in which institute you are related to and what is your job or what is your position over there. आप करती क्या हैं वहाँ पे? Okay, so as you know, I'm at Institute of Business Management and associated for this institute for the past 28 years since its inception. And these days, I'm here for the category of the job position of a proctor. Which is here, the proctor is here to get the various policies implemented, which includes the code of conduct overall and the dress code policy as well, the inappropriate behavior and smoking, vaping and other offenses as well. And I'm also a faculty over here and teaching financial accounting. Okay ma'am. अच्छा ma'am, the first question over here, as we know, is why is there a need of a dress code policy in universities? Okay, it's a very good question. And the basic need is of professionalism. Because as any organization regards and reveres your skill sets, in the similar way, all the students should also respect the rules and regulations of that particular institute. And that is what is the basic requirement of professionalism. अच्छा तो मैम ये डिसाइड करता कौन है कि what is behavior और what is a proper dress code? ये डिसाइड कहाँ से होता है और कैसे होता है? If you just check the catalog or of this institute, the code of conduct is written over there. And dress code policy is the part of that code of conduct. Along with many other offenses, the possible offenses, and the list goes up to 52. Yes ma'am. But this is the most common one. And it is not attacked directly, but there are 4 steps of, the penalties and the repercussions of a violation. The first verbal warning, the second written warning, and third of the sub-disciplinary committee, and fourth and fifth to the main disciplinary committee. So it is done step by step, and it's not attacked, suddenly, I would say. अच्छा मैम, ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो है, बनाता कौन है और ये ड्रेस कोड डिसाइड कैसे होता है? The management. The management. There's a board, the disciplinary committee is there. The disciplinary committee and the top management, the senior management makes this code of conduct after discussion with, mutual discussion, I would say, in the senior and topmost management. Acha ma'am, since you are the one who implements these policies and enforces these policies on students, so have you ever asked the management, the senior management, I'm guessing कि आपको एक conduct मिल गया कि आपको अब ये enforce करवाना है, right? Do you have any say कि वो conduct क्या है? जैसे suppose लड़कों को चप्पल पहनना अलाउड नहीं है, शूज़ होने चाहिए, क्लोज शूज़ होने चाहिए. तो who made this policy and on what grounds? मतलब क्या रीजनिंग थी, क्या उस फैसले के अंदर डाइवर्सिटी थी, नहीं थी, कितने लोग थे उस पैनल में, औरतें थी, मर्द थे, क्या शमूलियत थी उनकी? तो ये इसकी जो बेसिस हैं, इसके जो ग्राउंड्स है, डू यू हैव एनी से इन इट एंड इफ़ यू डू तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड यू डिसाइड एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ से इन इट, आपको बस बताया कि आपको बस इन्फोर्स करवाना है अब ये, तो डिड यू एवर आस्क द मैनेजमेंट कि ये किस ग्राउंड्स पे बनी है ये पॉलिसीज? ओके, देखिए, ट्रूली स्पीकिंग, जब ये बनी थी तब मैं उस वक्त उस कमेटी में शामिल नहीं थी. ये बहुत इट्स लॉन्ग टाइम बैक बनी थी. हाँ, ये है कि थोड़ा सा इसकी डिस्कशन हमारी होती रहती है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि 3 years बैक नी लेंथ शर्ट्स उसमें लिखा हुआ था ड्रेस कोड पॉलिसी में. फिर देन आई प्लीडेड फॉर यू पीपल एंड स्टिल आई एम अ बैड पर्सन. आई प्लीडेड फॉर यू पीपल कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स उनमें ये है कि इट हैज़ टू बी मिड थाई शर्ट. ठीक है, ये मैंने प्लीड किया था. सो आई हैव अ से इन दैट रिस्पेक्ट. जहाँ मैं थोड़ा सा ये फील करती हूँ कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, देन आई इंटरवीन. So I intervened. I got it accepted from the senior management कि मिड थाइज प्लीज अलाउ करते, ब्रांडेड और अनब्रांडेड में जीन्स के साथ
जो है मिड थाई शर्ट्स मिनिमम आती हैं, आप नी लेंथ हमेशा नहीं ले सकते हो, हालांकि कोई ढूंढना चाहे तो वो भी मिल जाती हैं. एज इन द विंटर्स आई माई सेल्फ वेयर निट वेयर विच इज नी लेंथ ऑलमोस्ट, तो आई ऑल्सो वेयर दैट. ढूंढना चाहे तो इंसान सब कुछ मिल जाता है, ब्रांडेड भी मिल जाता है, अनब्रांडेड भी मिल जाता है. तो इन दैट रिस्पेक्ट आई डू हैव अ से. जहाँ मैं देखती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो देन आई डू इंटरवीन. लेकिन ये नहीं होता कि हमारी बार बार इसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए कमेटी बैठ रही हो कि ये ठीक है, यानी इट हैज़ बीन डिसाइडेड एंड इट इज़ रिव्यूड एवरी सेमेस्टर. और जो चीज़ जैसे कि मिसाल के तौर पे पोनी टेल्स एंड बन्स बॉयज़ में ये अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस हुए थे लाइक 1 year बैक कि नहीं जी, बहुत हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, पोनी टेल्स बहुत बना रहे हैं लड़के, तो हमने वो फिर उसमें इंक्लूड कर दिया. अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि स्लीवलेस कुछ पहन रही हैं लड़कियां, तो पॉसिबली आई एम गोइंग टू ऑल्सो इंक्लूड दैट आफ्टर टेकिंग ड्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम आवर सीनियर मैनेजमेंट. सो दिस इज द वे. छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, आप यू कैन हैव अ से, बट नॉट ऑन वेरी बिग थिंग्स या बेसिक पॉलिसी को हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते. अच्छा मैम, सॉरी मानूर, बहुत ज़्यादा वन साइड हो गया था. okay. अच्छा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से रिलेटेड है, लाइक आपने सोली पाकिस्तान से पढ़ा या फिर आप कहीं और भी गई हैं? नहीं, आई वॉज इन पाकिस्तान टिल grade 8. फिर 1 साल आई वॉज इन दुबई एंड देन आई डिड माई हाई स्कूल फ्रॉम द US. अच्छा, आप दोबारा पाकिस्तान में आई हैं? Yes. अच्छा, तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गई हैं जहाँ आपने एजुकेशन ली है, ड्रेस कोड कंट्रीज़ के हिसाब से आपको क्या चेंज लगा है US में, दुबई में और पाकिस्तान में, और इन्फोर्सिंग उनकी वहाँ पे कैसे की जाती है? Okay. So Pakistan and Dubai mein to mainly it was uniform. So there wasn't a need for a dress code policy. However, ke suppose koi birthdays ya koi events hote the, to usme you could wear your home clothes. So there wasn't a specific dress code policy of what you can or cannot wear. US mein there was a dress code policy and like we had to adhere to it, but it wasn't as restrictive like ke because it's a very liberal country. मतलब there are people from all different parts of the world and culture जिनके अलग beliefs हैं, तो मतलब there is a thing as inappropriate clothes, but there wasn't a restrictive policy के and there wasn't मतलब इतना strict adherence नहीं थी उस policy पे. मतलब you can wear what you feel comfortable in and what you want to wear and just एक minor क्या कहते हैं conditions होती थी which you had to follow and which I think everyone followed. अच्छा, तो आपने कहा कि there was a border between inappropriate and acceptable. US की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो we know what is appropriate and what is not, but US में what was considered inappropriate? Could you be a little more specific? Sure. So मतलब we did study in an education institution, तो एक decorum maintain करना पड़ता है. So inappropriate would be like कोई vulgar या racist या एक कोई ऑफेंसिव कोई जैसे राइटिंग या उसकी कोई आपने क्लोथिंग नहीं पहननी. इनअप्रोप्रिएट फॉर गर्ल्स यही कि वेरी शॉर्ट शॉर्ट्स नहीं पहननी, और लाइक मतलब यू कैन वेयर क्रॉप टॉप्स, यू कैन वेयर स्लीवलेस, यू कैन वेयर क्या कहते हैं ऑफ द शोल्डर एनीथिंग. इट वाज मतलब शॉर्ट, ज़्यादा शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहननी. यू कैन वेयर स्कर्ट्स लेकिन ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहननी. बॉयज़ के लिए देयर वाजंट एनी. मेनली इट वाज जस्ट फोकस्ड ऑन कि रेशियल स्लर्स नहीं होने चाहिए, कोई इनअप्रोप्रिएट ऑफेंसिव चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए. अदर देन दैट देयर वाजंट अ स्पेसिफिक ड्रेस कोड पॉलिसी. ड्रेस पैंट्स ओवर देयर, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रेस पैंट को एज इतना वो करते हैं कि ये वल्गर भी कहा जाता है. ड्रेस पैंट्स, हाँ, ड्रेस पैंट फॉर्मल क्लोथ जो लड़कियां पहनती हैं. ओके, सही है, कोट होता है, पैंट होता है और शर्ट होती है. वहाँ पर ड्रेस पैंट के हिसाब से क्या किया जाता है? दैट्स फॉर्मल क्लोथिंग, दैट्स कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट. पाकिस्तान में दैट्स कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट. आप बाहर NMCs में काम करने जाते हो, NMCs भी नहीं है, आप कहीं भी वर्किंग स्पेस पे जाते हो, दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर्मल अटायर. एंड उसमें ड्रेस पैंट्स होती हैं, आपकी फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, यू वेयर ब्लेजर ओवर टॉप, नीचे शूज़. और वो जो शर्ट्स होती हैं देर लाइक आपकी हिप्स कवर करती हैं, कभी नहीं भी करती. देर स्लीवलेस, देर हाफ स्लीव्स. तो मतलब इट्स अ फॉर्मल अटायर, सो इट्स नथिंग इनअप्रोप्रिएट इन दैट. अच्छा मैम, कंसीडरिंग ड्रेस पैंट, हमने अक्सर सुना है कि आपके मतलब CBM में ड्रेस पैंट में आपने खुद अक्सर लड़कियों को पकड़ा है, सही है, कि वो ड्रेस पैंट नहीं पहन सकती. तो इसका
तो इसका रीजन क्या है The मैम? reason being the rule first of all has to be mid-thigh at least. तो मैम वो टक इन शर्ट होती है तो Tucked in is not allowed. अगर आप ड्रेस कोड पॉलिसी दोबारा देखें तो इट हैज बीन नहीं मैम वो तो ठीक है, वो तो पता है, लेकिन मैम कंसीडरिंग कि आप एक फॉर्मल क्लोथिंग है और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां पर आप जब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे और आपको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे तो आप जरूर पहने. इफ दे डोंट यू दे इट इज तो मैम जब- एक्सेप्टेबल ओवर देयर जरूर पहने. सही है, वो तो यहाँ ठीक है. एक्सेप्टेबल नहीं है. नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ ना, एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है? It's very- सवाल ये है. देखिए उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स के बहुत वो भी टाइट, जो आप ड्रेस पैंट जिसको कह रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा टाइट पहन लेते हैं. तो द ड्रेसअप इज वेरी टाइट, जो कि बहुत एक रिवीलिंग और अनएक्सेप्टेबल लगता है. क्योंकि whenever you are in a professional organization or an institute, तो यू डोंट नो कि आप किसको वहाँ इनकाउंटर कर रहे हैं, कौन आपके इर्द गिर्द है. हमारे इर्द गिर्द दूसरा स्टाफ भी होता है, द नॉन मैनेजमेंट स्टाफ विच हैव गॉट अ डिफरेंट मेंटालिटी. सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस. सो बैलेंस इज ऑल्सो अनदर रीजन. और वो फिर बहुत टाइट उसकी तरफ चले जाते हैं, इसलिए हम वो उसको अलाउ नहीं करते. अच्छा मैम, सिंस वी आर कंपेयरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट है, उसको अभी हम कंपेयर कर रहे हैं. लेट्स से देयर इज अ ड्रेस कोड कि आपने करियर फेयर की एग्जांपल ले लेते हैं. आपका ड्रेस कोड है, आपने पैंट पहनी है, शर्ट टक इन की हुई है, ब्लेजर पहना हुआ है, योर स्किन इज नॉट शोइंग, ठीक है, इट मे बी टाइट, ठीक है, एज यू सेड इट मे बी टाइट. आप कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये पॉलिसी इसलिए लगाई जाती है बिकॉज देयर इज नॉन मैनेजमेंट स्टाफ टू जहाँ पे हमें नहीं पता यार कि वो किस तरह सोचते हैं. एंड यू नो, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी चले, एक ये भी फैक्टर हम कंसिडर कर ले कि इट इज़ इन कोरंगी, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एरिया, इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है. तो हम वो कंसर्न है कि लड़कियां पॉइंट में आती हैं, फिर और भी स्टाफ होते हैं, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि वो मेल गेज इशू भी आ जाता है, तो वो टाइट नहीं होने चाहिए कपड़े. बट अगर हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कंपेयर करें तो जो औरतें ये कपड़े पहन के जा रही हैं, दे आर आउट इन द रियल वर्ल्ड. यहाँ तो फिर भी अगर सपोज कोई एक स्टाफ का बंदा किसी स्टूडेंट को देख भी रहा है, घूर रहा है, सपोज लेट्स से घूर रहा है, बट ही कैन नॉट डू एनी हार्म टू दैट गर्ल बिकॉज वो एक सेफ एनवायरनमेंट में, वो इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट में जहाँ सिक्योरिटी है, शी इज सराउंडेड बाय हर फ्रेंड्स, हर टीचर्स, द मैनेजमेंट, एवरीवेयर, तो वो सिक्योर्ड है. बट आउट इन द रियल वर्ल्ड जब औरतें इस तरह के कपड़े पहन के जाती हैं जॉब करने, तो वहाँ तो वो एक्चुअली सिक्योर नहीं है, वो तो ऊबर कर आके जा रही हैं. पब्लिक बस में भी अब तो ट्रैवल कर रही हैं औरतें जब से पीपल्स बस आई है, तो वहाँ तो वो सिक्योर भी नहीं है. सिक्योरिटी का ज़्यादा खदशा भी है कि वो सामने वाला इंसान सिर्फ घूरेगा नहीं, कुछ और भी कर सकता है आपके साथ. तो फिर वहाँ पे क्यों अलाउड है और क्यों फिर भी औरतें पहनती हैं? तो मतलब दे आर मेकिंग देयर ओन चॉइस और वो फिर पहन रही है ना. तो डोंट यू थिंक कि इंस्टीट्यूट में भी वी शुड लेट देम मेक देयर ओन चॉइस, जबकि वो तो सिक्योर भी है यहाँ पे. यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी. दिस इज नॉट ओनली द नॉन मैनेजमेंट स्टाफ जिसकी हम बात कर रहे हैं. देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स. देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिलीजियस बैकग्राउंड्स एज वेल. अब देखिए, हम हरे को हिजाब पहनने का नहीं कह रहे, हम हरे को दुपट्टा लेने का नहीं कह रहे, सर पे दुपट्टा लेने का नहीं कह रहे, और यहाँ तक गले में दुपट्टा डालने का भी नहीं बोल रहे. बट आई डोंट नो वेदर यू गोइंग टू बिलीव और नॉट, देयर आर ग्रुप्स ऑफ बॉयज, द मेल स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड दे से कि मैम यू आर डूइंग वेरी राइट. जब हम मस्जिद से निकल रहे होते हैं और जब हम बहुत टाइट ड्रेसअप में फीमेल्स को देखते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो यू सी, देखिए, इट्स नॉट, आप नॉन मैनेजमेंट स्टाफ का रीजन इसको नहीं दे एट्रीब्यूट नहीं कर सकती. देर आर मैनी पीपल, देर इज द फैकल्टी हु कम्स फ्रॉम ऑल द कल्चर्स, ऑल द बैकग्राउंड्स. ठीक है. अच्छा, और यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. इफ शी इज बीन टू 3 countries, आई हैव माई सेल्फ बीन टू 46 countries अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आई एम बेसिकली बाय प्रोफेशन अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. तो अगर आप, मतलब आपने तो अगर इतना सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा, तो मैंने बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड 46 countries अराउंड द वर्ल्ड घूमी हूं मैं. तो आप देखें कि इससे आप करें कि इवन देन यू नो आई वांट टू गेट दिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर. अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की भी बात करें, अगर आप बाहर चले जाएं रेस्टोरेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, या कहीं भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, पकड़ते भी हैं, तो बहुत कॉमन है. ठीक है, हर एक के अपने कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, और प्रोफेशनलिज्म आपसे ये डिमांड करता है कि आप कल्चरल, रिलीजियस और नॉर्म्स, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज़ प्लस द नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाएं. और जैसे कि हर जगह जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी तरह से वी वांट टू कीप अ बैलेंस and get the generally accepted principles to be implemented.
ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो वो भी बताएं. आपके सवाल में was very long question, so if still something remains, any ambiguity is there, so I'm here to clear that. अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल था कि आपने कहा कि और स्टूडेंट्स भी आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स, राइट? तो बाहर जब हम जाते हैं नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, I don't agree with you. What is it? I don't agree with you कि protection is the sole thing. It's the way everyone thinks and feels also and has a perception. That also counts. ये नहीं कि हम मुझे पता है we are safe. अच्छा, एक सवाल आपने और भी किया था कि why do they allow, the corporate world allows, and why don't we allow? तो इट्स देयर प्रॉब्लम कि व्हाट दे आर अलाउइंग एंड व्हाट दे आर नॉट अलाउइंग. हमें तो वो देखना है कि हमारी कल्चरल वैल्यूज क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या है, एंड वी हैव टू कीप अ बैलेंस इन एवरीथिंग. सो वी हैव अलाउड, वी आर नॉट कंसर्न्ड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड व्हाई. इट्स देयर प्रॉब्लम. अच्छा मैम, कंसीडरिंग आपने ये सब बोला, आपका कोड ऑफ कंडक्ट में एक है कि जो विजिटर्स आते हैं उनकी भी ड्रेस कोड पॉलिसी है, तो मैम है वैसे पढ़ी मैंने विजिटर्स की ऐसा हमने आईबीए की तरह लगाई भी तो नहीं है जी. आईबीए में अगर आप एंटर ही होते हैं ना, उसकी एग्जांपल दे रही हूँ मैं. आईबीए से ये नहीं मैं कह सकती किसी तरीके से कम नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ आईबीएम बीइंग एन एलुमनस. तो उन्होंने तो गेट के बिल्कुल ऊपर ही लगाई भी है, हमने एज सच नहीं लगाई भी. वो इस वजह से लगाई जाती है कहीं भी ड्रेस कोड पॉलिसी, ताकि जो आने वाला है ना वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो उसे पता हो कि दीज आर द नॉर्म्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. अच्छा मैम, ये चीजें हैं. अब जैसे करियर फेयर होता है, कोई आपका कोई जैसे ऑडिटोरियम में कुछ टाइप का सेमिनार होता है, तो वहां पे जो लड़कियां आती हैं, जी बिल्कुल आती हैं, वो प्रोफेशनल क्लोथ जिनको हम कहते हैं ड्रेस पैंट में होता है जी. तो मैम वहां पर ये चीज क्यों नोट नहीं की जाती और उन कंपनीज को क्यों नहीं बताया जाता कि हमारे प्रेमिसेस में ये क्लोथ्स अलाउ नहीं है? जी, आपका ये बहुत अच्छा सजेशन, आई विल टेक इट एज अ सजेशन. एंड वैसे हमारी गाइडेंस ये होती है कि जो भी विजिटर्स यहाँ आए हम उन्हें पहले ड्रेस कोड पॉलिसी बता दें. अब मिसाल के तौर पे अगर हम अभी तो इंटरनल की बात ही कर लेते हैं कि आपका ये हुआ था इंटर सोसाइटी स्पोर्ट्स हुआ था, फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें रियाज साहब केम टू मी एंड एक्सप्लेन द होल थिंग एंड ही टोल्ड मी एंड इंश्योर्ड मी कि जो गर्ल्स होंगी उनकी बिलो हिप्स होंगी शर्ट्स और इट वोंट बी अ टाइट ड्रेसअप, क्योंकि हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है इसको भी बहुत सीरियस लेती है. ठीक है, देखिए अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए देयर आर मेनी वायलेटर्स इन दिस इंस्टीट्यूट जिनको के वार्निंग्स मिलती रहती हैं, एवरीवन नोज दिस. और अब तो डिसिप्लिनरी कमेटी में भी ऑन द 5th offense वी आर गोइंग टू कॉल विद द मदर्स टू साइन द अंडरटेकिंग्स. ठीक है, तो आई टेक इट एज अ वेरी यूजफुल सजेशंस. सोसाइटीज को भी हम बताते रहते हैं, द फैकल्टी एडवाइजर्स, कि आप प्लीज अपना जो टी शर्ट्स डिजाइन करते हैं अपनी सोसाइटी के पार्टिसिपेंट्स को, तो वो फीमेल्स को प्लीज आप एक मिड थाई के करीब टी शर्ट्स, ओवरसाइज्ड टी शर्ट्स को आप वो कर लें. लेकिन आई टेक इट एज अ सजेशन कि वेन एवर दे आर कॉल्ड तो दे शुड बी टोल्ड कि दिस इज व्हाट आवर ड्रेस कोड पॉलिसी इज, सो यू शुड अटायर अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हम उस पर बहुत ज्यादा इन्फोर्स नहीं कर सकते. हाँ, उसे आइडिया दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस एक पेपर पे दे सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा इन्फोर्स नहीं कर सकते उनको, बिकॉज इट इज देयर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अच्छा मैम, कमिंग बैक टू योर प्रीवियस आंसर, आपने कहा कि हमें रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज को साथ लेके चलना है. टीचर्स हैं और जो काफी रिलीजियस, बिल्कुल बैलेंस रखना है, बैलेंस तो उनका भी हमें ख्याल रखना है. बट अगर हम रिलीजन की बात करें, लेट्स से वी टॉक अबाउट रिलीजन फॉर अ मिनट, तो रिलीजन में तो ये भी है कि लड़का और लड़की साथ पढ़ नहीं सकते, हिजाब वाजिब है. रिलीजन के तो जो रूल्स हैं वो तो बहुत अलग है, वो तो यूनिवर्सिटी तो उससे क्लोज भी नहीं आ रही है. यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है वो भी रिलीजन में नहीं, मैं कहूँगी एक्सेप्टेबल है, कोएड का नहीं है. एंड कि औरतों का इतना आगे जाना वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना. कोएड में तो देखिए, मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, तो मैं इस बात पे बिल्कुल आपसे ये नहीं, मुझे नहीं पता कि कोएड लड़के लड़की साथ पढ़ सकते हैं. हाँ, मुझे ये पता है कि हिजाब होना चाहिए और प्रॉपर एक उनका जो इस्लामिक अटायर होता है वो होना चाहिए, दैट आई नो. तो अगर ये मुझे नहीं पता कि साथ होने चाहिए. आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, सो आई डोंट नो. जहाँ तक मैंने पढ़ा है रिलीजन के बारे में, एंड आई विल टॉक अबाउट माय रिलीजन, माय सेक्ट, वहाँ पे यही होता है कि कोएड इज हराम. लड़के लड़की का इतना ज्यादा इंटरेक्शन बहुत बुरा समझा जाता है रिलीजन के अंदर. बट हम ये बात करें, जब हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में तो ये सभी गलत है ना. तो फिर हम क्यों रिलीजन की कुछ चीजें उठा रहे हैं कि यार कोई एक रिलीजियस बंदा है, उसे नहीं पसंद कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आए,
तो यू शुडंट बी इन दैट इंस्टीट्यूट जहाँ लड़कियां आ रही हैं और आपके बराबर में बैठ के पढ़ रही हैं। देखिए, अब आपकी सेक्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अब इस बात पे नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम स्पेसिफिक। ओके, देखिए इस्लाम स्पेसिफिकली हर एक, देखिए डिफरेंट जो होते हैं ना सेक्ट्स, उनके डिफरेंट वो भी होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं। अब आपका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस पे तो मैं रिलीजियस वाली बातों पे तो मैं बात ही करना नहीं चाह रही। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन यू नो यस और नो। मैं आपकी इस बात पे क्वेश्चन नहीं कहूंगी, लेकिन इस बात बारे में तो हम सब मुत्तफिक होंगे कि डेफिनेटली इफ यू गो आउट, इफ अ फीमेल इज गोइंग इस्लामिकली, तो उसे पूरे हिजाब एंड पूरे उसमें, ठीक है। लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर हम देखिए सेक्युलरिज्म एंड इस्लाम रिलीजियस, यू नो, ये बहुत टू एक्सट्रीम्स है, ठीक है। उसके दरमियान हम एक बैलेंस रखते हैं कि हमारे पास सब रिलीजन से लोग आ रहे हैं, ठीक है। और जहां मैंने रिलीजन की बात की है, वहां मैंने कल्चर की भी बात की है, कल्चरली एक्सेप्टेड, और नॉर्म्स की बात की है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स इज ऑल्सो ओवर देयर, एक्सेप्टेबल। अब देखिए, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे दूं। जब आप लोग बाहर जाते हैं, आप यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आप वहां के नॉर्म्स के मुताबिक शलवार कमीज पहनकर फिरना मायूब समझते हैं, ठीक है। सो यू फील मोर कंफर्टेबल इन पैंट शर्ट्स, ठीक है। वो भी आपके किस डिग्री तक वो जाती है, ज्यादा डिग्री ऑफ टाइटनेस पे जाती है, रिवीलिंग पे जाती है, उसमें ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन आप देखें, आप कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे पास सब रिलीजन से लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। हम अगर कोई दूसरे जो इस्लाम का नहीं है, उसको ये तो नहीं कहते बेटा हिजाब पहन कर आना, तुम यहाँ, दिस इज नॉट अलाउड, तुम दुपट्टा सर पे लेकर आना और तुमने दुपट्टा जरूर लेना है। तो देखिए, हम उस पर ये चीज इन्फोर्स हरगिज नहीं कर सकते। तो आई हैव अर्लियर टॉक्ड अबाउट professionalism and balance, you know, so we are trying to maintain a balance, that is it. अच्छा, मेरा भी फिर यहाँ पर एक सवाल है। जी मैम, पूछे। लड़कियां इतने टाइट ड्रेसअप क्यों पहनना चाहती हैं, और इतनी क्रॉप टॉप्स और छोटी छोटी कमीजें क्यों पहनना चाहती हैं, टाइट पैंट्स क्यों पहनना चाहती हैं? अच्छा, ये मुझे बता दें आप। मैम ये तो देखें, मुझसे तो बहुत पूछ लिया आपने, अब आप बताइए ना, शायद ये बता दें। या मैम, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू आंसर दैट। ये जवाब देना आप मुझे। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि क्यों, जब एक कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों पोक करना है, क्यों रिबेल करना है, क्यों करना है, व्हाई? बट मैम, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चलता है, बट आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, बिकॉज मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ, मैं सीबीएम में पढ़ रही हूँ, मैंने इतने कोर्सेज लिए जहाँ पे हमने लिबरलिज्म की, फ्रीडम ऑफ चॉइस की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करी हैं। हाँ, लिबरलिज्म पे भी मैं आपको एक बात अभी बताती हूँ, शेयर करूँगी, पहले आप जवाब दे दें। ये जो आ रहा है कि है ना, हम जैसे कपड़े पहनना चाहे, अगर हमारे घर वाले इजाजत दे रहे हैं हमें, तो हम पहनेंगे, हमारा दिल हमारे इजाजत, जैसे एक लड़की अगर टाइट कपड़े पहनती है लेट्स से, तो उसे पता होता है द काइंड ऑफ चॉइस शी इज मेकिंग, उसको भी पता है कि लोग उसे देखेंगे। पाकिस्तान कराची के अंदर स्पेशली जब वो निकलेगी घर से बाहर, तो 100 लोग उसे देखेंगे, एंड शी नोज दैट एंड शी मेक्स दैट चॉइस। तो डोंट यू थिंक कि हमें वो चॉइस उनको दे देनी चाहिए? चलिए लेट्स से हमने दे दी, मैं तो ये कह रही हूँ, बॉटम लाइन इज इस ड्रेस कोड की, कि एक यूनिवर्सिटी ने आपको ड्रेस कोड दिया हुआ है, एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, यू साइंड ऑन इट। हमने एक अंडरटेकिंग साइन करी थी, हम यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को मानेंगे, तो जब हमने साइन कर लिया तो हम पे तो इम्प्लीमेंट करना फर्ज हो गया है वो, और वो मैं कह रही हूँ बेशक करना भी चाहिए, आप जो करिए आपकी जॉब है, एंड दे शुड फॉलो इट, बिकॉज़ दे जॉब नहीं है। आई एम वेरी मच लॉयल टू दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज आई एम एन एलुमनस, और हमें इसको आगे लेकर जाना है और इसकी पॉलिसीज को प्रमोट करना है। सिर्फ ये जॉब का मसला तो है ही नहीं, तो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था, दिस इज नॉट माई सोल ब्रेड एंड बटर। एक्चुअली द पॉइंट इज, एज अ स्टूडेंट मैं भी कहती हूँ कि एक पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की, जैसे स्मोकिंग पॉलिसी, अब एक इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि नो स्मोकिंग, तो यू शुडंट स्मोक, उसकी पॉलिसी है, यू शुड रिस्पेक्ट इट। आपका इंस्टीट्यूट है तो यू शुड रिस्पेक्ट इट्स पॉलिसीज। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करते हैं। ड्रेस कोड है, बेशक है, हम उस पर बहस ही नहीं करते कि क्यों है, क्या है, कौन डिसाइड कर रहा है, किस तरह का होना चाहिए, वो कॉन्वर्सेशन हम ड्रॉप कर देते हैं। अब हम इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और हम मानूर की तरफ आते हैं। मानूर, इसके बाद लिबरलिज्म पे भी बात जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मानूर, मेरा आपसे सवाल ये है कि यू आर हियर बिकॉज मैंने आपसे जब ये पूछा था कि विल यू बी अ गेस्ट, और मैंने आपसे ये पूछा भी था कि हैव यू एवर फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शंस, तो टेल अस अबाउट दैट कि हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट अबाउट दिस स्पेसिफिकली ड्रेस कोड पॉलिसी, कितने आपके इंटरेक्शंस रहे हैं और किस तरह के रहे हैं, प्लीज इलैबोरेट। Firstly, can I just add something on the previous points हम discuss कर सकें? Like मैम said कि like एक तो formal जो कपड़े हैं, like firstly it's very hard to find knee length formal clothes, ठीक है, and professionally अगर बाहर भी जाते हो वो mid thigh से भी ऊपर होते हैं, ठीक है, and जो आपकी dress pants होती हैं
they're majority of the time tight. ठीक है. अब the thing is, we should not be held responsible कि लड़कों की नज़र कहाँ जा रही है. इस्लाम में तो ये भी है कि अपनी नज़र झुकाओ. अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है या प्रोवोकिंग लग रहा है तो अपनी नज़र नीचे कर लो. मतलब it shouldn't be our responsibility to not provoke you. ठीक है, आप प्रोवोक हो रहे हो, lower your gaze, don't act upon your urges ना. अगर कोई urge आ रहा है तो it shouldn't be हमारी responsibility. In my opinion, dress pants and dress shirts are completely formal. चाहे वो जितनी भी टाइट हो. अगर कोई टाइट कपड़े पहन रहा है because she is feeling comfortable in wearing those. जितनी भी अभी बातें हुई हैं, it feels like the dress code policy is there only for girls and only to limit and restrict girls. I understand inappropriate clothing होती है जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं पहननी चाहिए. ठीक है, आपकी ओवरली क्रॉप टॉप्स हो गई या अगर आप शॉर्ट्स पहन के आ रहे हो या मतलब ऑफ द शोल्डर या मतलब बैकलेस आप पहन के आ रहे हो, चलो ठीक है, दैट्स इनअप्रोप्रिएट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. ठीक है, बाहर आप जैसे भी पहन रहे हो. बट इफ़ यू वेयरिंग हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस भी पहन लिया, इतनी गर्मी है, आपने कब पहनना है क्योंकि आप नॉर्म, बिकॉज दैट्स योर नॉर्म ना. अगर हम नॉर्म्स की बात भी कर रहे हैं, कल्चरली एक्सेप्टेड की बात भी कर रहे हैं, तो आप देख लो हमारी सोसाइटी में दैट इज़ एक्सेप्टेड नाउ. ठीक है, आप अगर घर पे स्लीवलेस शलवार कमीज पहनते हो, हाफ स्लीव्स पहनते हो एंड यू वांट टू वेयर दैट यूनिवर्सिटी एंड यू थिंक वो कुछ मतलब इट्स नॉट इनअप्रोप्रिएट ना, तो यू शुडंट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन इट. ठीक है, एंड इट शुडंट बी अ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट प्रोवोक अ मैन. मतलब हाँ, मतलब पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू दिस यूनिवर्सिटी, और जो हम भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हम सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे, हर किसी के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, किसी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं. तो अगर आपको बैलेंस रखना है तो सबको बैलेंस लेके चलो. देयर इज़ अ लाइन इन बिटवीन इनअप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट. इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जिसमें आप ओवरली अपना स्किन शो कर रहे हो या अगर आप शॉर्ट्स पहन के आ रहे हो या ऐसी चीज़ें पहन के आ रहे हो. अब जैसे ISSF की बात भी की थी, अब उसमें भी लाइक कि टी शर्ट शुड बी नी लेंथ. टी शर्ट्स नी लेंथ नहीं होती हैं. अब ठीक है, आप बनवा रहे हो तो ठीक है, बट द थिंग इज अगर कोई नी लेंथ टी शर्ट्स में कंफर्टेबल नहीं है, दे डोंट फील कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इन दोस्त, दे वांट टू वेयर नॉर्मल टी शर्ट्स जो हर कोई पहनता है, दैट शुडंट बी रिस्ट्रिक्टेड. ऐसे तो ISSF में बॉयज़ भी दे वेयर शॉर्ट्स इन प्ले, फुटबॉल या बास्केटबॉल हो गया, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अलाउड इन द ड्रेस कोड पॉलिसी ना. तो it shouldn't be just limited to girls, and मतलब it shouldn't be girls' responsibility specifically to not have men stare at her, और कि वो रोज़ घर सोचे कि आज मैं ये पहन के जाऊँगी and people will stare at her, because no matter what she wears they will stare at her. So let her wear what she wears, and if that's appropriate or formal wear is appropriate. मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कॉर्पोरेट, उसमें भी वहाँ पे इट्स ए नॉर्म, आप फॉर्मल कपड़े पहनते हो, नो वन बैट्स इन आया आपने क्या पहना है, चाहे वो जितना भी टाइट हो या क्या, और उसमें भी प्रोफेशनलिज्म की बात आती है. सो डोंट जज ऑन व्हाट अ पर्सन इज वेयरिंग, तो दैट्स प्रोफेशनलिज्म एज वेल. अच्छा, I think let's agree to disagree here, and let's move on to my question. जो मेरा था कि how was your experience with the disciplinary committee? आपकी क्या violations थी and how was it handled? How did you handle it? And what effect did it had on you? Okay, मतलब I had 2 experiences ऐसे specifically dress code उसके लिए. एक, I was wearing jeans and a black full sleeve shirt. ठीक है, that shirt was in knee length, it was in mid length, वो इधर तक थी. ठीक है, Was it covering your hips? नहीं. Okay. But the thing is, my skin was covered top to bottom पूरी. मेरी jeans भी इतनी tight नहीं थी, and I did get क्या कहते हैं उसे, dress code policy for that. और अच्छा, how were you called out for that? पहले हम एक instance की बात करते हैं, फिर we'll move on to next. How were you called out on that? I was sitting with my friend and her mom called me and she asked me for my ID card, and then she told me how I am violating the dress code policy and how by violating it, like
it was, thing was, she was very sweet, no doubt, but the things she said did shatter my confidence, and it did feel like an attack of some sorts, not matlab a personal attack, like ठीक है, if I'm not following the dress code. Acha Manu, let me just stop you there. If you're not comfortable sharing it, you can say no. You know that, right? Yeah. Are you comfortable? Yeah, I'll share. Okay, I'll be go on. candid. पर मुझे बाद में जरूर बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया. Yes, ma'am. I remember it specifically. वो फिर ऑफ द उस पे होगा फिर. आप जरूर बता दीजिएगा मुझे. जी मैम. तो मतलब it did, मतलब I was taken aback and I was like, okay, I did not feel like I was violating it this much. ठीक है, if I was violating it, आप ID card ले लें and मतलब आप note down कर लें, and next time I won't do it. But उसके बाद से I never felt comfortable wearing jeans or a shirt, even though मतलब मेरा होता है कि I'll wear it. कि गर्मी होती है कभी, and I'm like, and it's easy to wear jeans and a t-shirt or long sleeve shirt, but I do get scared, and I'm like, I don't want to be called upon again. I don't want to hear those things again. So, but the thing is, it was quite shattering to my confidence, and it felt like an attack. Acha, thank you so much, Manu, for sharing that. You had a question? बोलो. अच्छा, तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि पहले यहाँ कल्चरल नॉर्म्स की बात हुई, मैं खुद जो बलोच हूँ, आई नो हमारा कल्चर कितना गंदा है और किस तरह उसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए. हमारे इलाकों में लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता स्कूलों में. तो कल्चर कई जगह एक चीज़ अगर अच्छी भी है तो वो अक्सर जगह गंदी भी है. सही है, तो ये चीज़ है. अच्छा, दूसरी चीज़ जब ये है कि आपको मैम ने जो बात की कि लड़कियां ये पहन कर आती हैं तो लड़के उनको नोटिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना. अच्छा मैम, जब ये लड़के रियल वर्ल्ड में जाएंगे, यूनिवर्सिटी से निकल कर ऑफिस में जाएंगे, इनकी अगर फॉर एग्जांपल बॉस है, वो ड्रेस पैंट पहन कर आती है, टाइट क्लोथ पहन कर आती है, वहाँ पर ये रिएक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसका काम सिर्फ अकेडमिकली पढ़ाना नहीं होता, उसका काम ये भी होता है कि एक स्टूडेंट को प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार करके भेजना. जब उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ उसको एक सेफ इन्वायरमेंट फराहम की जा रही है कि जब वो किसी लड़की को ऐसे क्लोथ पहनता हुआ देखता है तो वो कंप्लेन करता है ना, ऑल राइट, सही है. फिर इंस्टीट्यूट भी अपनी पॉलिसीज़ के तहत उसकी इस चीज़ को प्रमोट करती है. जब ये लड़का प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाता है और इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर बॉस या कलीग्स टाइट क्लोथ पहन कर आते हैं एंड ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस थिंग एंड व्हाट टू डू, तो उस पर ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लैकिंग हो गई ना. फिर तो नहीं, ये लैकिंग नहीं हो गई. हो सकता है कि वो इस तरह से रिएक्ट करे कि वो वहाँ के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. या आप क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ, बट मैम वहाँ पे तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना. क्या पता हो. बट अगर नहीं है, लेट्स से नहीं है, अगर नहीं है, यूजुअली एमएनसीज में नहीं है ये कोड ऑफ कंडक्ट. हो सकता है वो इम्प्लीमेंट करवा दे क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट होगा ना, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, वो आईओबीएम से पढ़कर गया होगा, उसे डिक्टेट करना आता होगा. बट मैम और टू वे कम्युनिकेशन भी आती होगी. अच्छा मैम, डिक्टेट करने की जहाँ तक हम बात करें, नहीं, टू वे कम्युनिकेशन Yeah, कर yeah, लिया आप okay. इसको. लेट्स अच्छा मैम, ये टू वे कम्युनिकेशन कर टू वे लिया. कम्युनिकेशन की अच्छा, बात तो है. you are एक saying- मिनट. हम भी यहाँ टू वे कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू माई स्टैंड, यू आर एक्सप्लेनिंग मी योर स्टैंड. तो हम टू वे कम्युनिकेशन एंड वी ऑलवेज यू नो इन अ वेरी सक्सेसफुल डिस्कशन you end up with some things from the other party and some things from this party. अच्छा मैम, टू वे कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि स्टूडेंट अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाए. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आवर सीनियर मैनेजमेंट इज वेरी वेरी ओपन टू द ईमेल्स. आप आज मैम सबीना को एक ईमेल करके देखें ड्रेस कोड पे, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट. वो बात ठीक है मैम, देखें, शी वुड बी वेरी, वो बात ठीक है मैम. बट मैम ये ईमेल का प्रोसेस एक लगता है ऐसा कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं ईमेल के थ्रू. तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फ्रेंड से तो बात नहीं कर सकते. ऐसा क्यों हो सकता कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो या कोई ऐसी चीज हो कि मैं उनके साथ जाके कम्युनिकेशन कर सकूं so you फेस want टू a फेस. students counselor over here? या मैम उसके लिए मसला क्या है फिर?
हाँ बिल्कुल सही बात है. I will also take it as a suggestion and give it to the senior management. और बल्कि बहुत सारे लोग ये सजेशन दे भी चुके हैं कि there must be a students counselor. अच्छा, जो कि सोसाइटी हेड से अगर आप कह दें और फिर वो उनसे कहिए आप डायरेक्टली जाकर उनसे मिल लें. हाँ ये मैम आपने कहा कि जैसे कोई लड़का अगर प्रोवोक हो रहा होता है किसी लड़की की ड्रेसिंग से, तो वो जाके मैनेजमेंट को कहते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, इस लड़की ने ये कपड़े पहने हुए हैं. व्हाट इफ अगर हम रूल्स को थोड़ा रिवर्स करें, कोई लड़की आके बोले कि मैंने कपड़े पहने थे इस तरह के बट उससे मुझे घूरा एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट स्टेयरिंग, व्हाट डज द मैनेजमेंट डू अबाउट दैट? आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंटी हरासमेंट कमेटी. मेरे पास आ जाए. अच्छा, I will take it very seriously. What's the and complain process it of to this harassment? जैसे suppose I complain, मुझे इस लड़के ने घूरा था. What will you do हाँ about ठीक है. it? नहीं, you did not like. ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल ले लेंगे. एंटी हरासमेंट कमेटी में आप लिख दें, मुझे लिख दें, आप डॉक्टर सीमान सारी को Yes, लिख दें. yes, but what will you do about it? What will be the next steps? We are going to call both of them. And then whatever the committee is going to decide. but tilted किस तरफ होगी conversation? Will you ask for नहीं, proofs? we won't be biased. Will you ask for proofs? या will you talk to both of them कि यार आपको क्या मसला था, आपको क्या मसला था, आप लोग Exactly. देखिए हमेशा यही होता है कि आप दोनों पार्टीज की बात सुनते हो. एग्जैक्टली. बट अब कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉलिसी, किसी लड़के ने आके कहा इस बंदी ने ऐसी ड्रेसिंग करी हुई थी, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट, आई वाज प्रोवोक्ड बाय दैट. तो आपने तो पॉलिसी बना दी कि अब लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं, हमने उसके कहने, I'm sorry, हमने उसके कहने पे बिल्कुल हर बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शन लग गई वहां. नहीं, लड़कों पे भी. अच्छा, लड़कों की तरफ आ जाए आप. चलिए लड़कों की तरफ आ जाए. वो इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर नहीं पहन सकते. बट मैम फुटवेयर इज अ वेरी पेटी वो इशू, यू नो वो बरमूदास नहीं पहन सकते. दैट इज अ वेरी पेटी इशू. आई एम जस्ट सेइंग दैट. नहीं देखिए, अब उनके लिए तो बेचारे अच्छा, पेटी. अब मैम, आप उनको डंडे लगवाना चाहते हैं. नहीं मैम, आप कंपेयर कर लेना. आप कंपेयर कर ले. लड़कों को फॉर्मल क्लोथिंग पहनना, यू आर अलाउड टू वेयर सूट्स, राइट? आई एम नॉट अलाउड टू वेयर पैंट सूट्स. तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे इक्वालिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैम अगर ड्रेस पैंट देखे तो टाइट होते हैं. ड्रेस पैंट लड़कों के भी टाइट होते हैं. डोंट यू थिंक कि मैं भी प्रोवोक हो सकती हूँ उससे एंड आई माइट बी अनकंफर्टेबल विद दैट? तो वेयर इज इक्वालिटी? देखिए इसमें आप इतनी बहुत ज्यादा, अगर हम लड़के और लड़की की इक्वालिटी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं इस फोरम पे कर भी नहीं सकती हूँ. ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स. आप भी बड़े हो, आप मैच्योर हो, आप लोग समझ सकते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत सारी बातें जो मैं अभी, यकीन करें, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ लेकिन इस फोरम पे नहीं कह सकते. But the thing is कि क्या आप यूं नहीं कह सकते कि जो उसने भी टाइट पैंट पहनी हुई और ये है और हम प्रोवोक हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो आप भी किसी भी बात पे प्रोवोक हो सकते. आप तो ये ना पे बेचारे ने पहना हो तो मैं यही दैट इज एक्चुअली द पॉइंट. आप प्रोवोक हो सकते हो बट किसी भी बात पे प्रोवोक हो सकते. मैं ये कह रही हूँ दैट इज एक्चुअली द पॉइंट कि हमें पता है आप लड़के. यकीन करें बुरके में भी लड़कियां जा रही हैं. exactly. So that contradicts the point ना. एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट्स द ड्रेस कोड पॉलिसी कि आपको लड़की को बुर्का भी पहना दे, तो अगर लड़के ने तो प्रोवोक होना ही है. तो आप लड़कों की नहीं, आप इतना बड़ा इल्जाम नहीं लड़कों के ऊपर लगा सकते. नहीं मैम, हर बात के ऊपर जो है. बट आपने खुद कहा ना, आपने खुद कहा कि बुर्का भी पहना हो तो वो प्रोवोक हो सकते हैं. देयर इज अ चांस. तो हम क्यों ड्रेस कोड पॉलिसी लगा रहे हैं? तो आप छोड़े ना. देयर कैन बी अ डिफरेंट मेंटालिटी. वी डोंट लाइक व्हाटएवर मेंटालिटी दे हैव, व्हाट दे थिंक अबाउट गर्ल्स. ये कि वो हर बात पे बेचारे प्रोवोक हो जाते हैं. आई एम अ मदर ऑफ 2 sons and 2 daughters. माशाल्लाह, आप जितनी बेटियां मेरी, आप जितने बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह से. तो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एज ग्रुप्स एंड सब कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है. आप इतना लड़कों को बेचारों को हर बात पे बेचारे प्रोवोक नहीं हो जाते. तो मैम आप लड़कों कैसे, तो आप लड़कियों, देखिए नाउ यू आर ट्राइंग टू बी पर्सनल विद द गर्ल्स, टेकिंग द गर्ल्स, कि गर्ल्स बेचारी मजलूम है और बॉयज को कुछ नहीं कहा जाता. बॉयज को भी जो बातें हमने देखे, आप ड्रेस कोड पे शर्ट से तो बाहर निकले ना आप. अच्छा, शर्ट से तो बाहर आए ना. व्हाट अबाउट अदर थिंग्स लाइक गलत मैसेजेस, रॉन्ग मैसेजेस रिवीलिंग होते हैं. बॉयज के भी उस पे होते हैं. वंस आई वाज इन 2008, आई वाज टीचिंग अ क्लास ओवर हियर. अच्छा, उसकी शर्ट के ऊपर बॉय के लिखा हुआ था. अब आप समझ जाए क्या लिखा हो सकता है. मैंने कहा ओके, कम हियर एंड यू हैव टू द होल डे यू हैव टू कीप अ रजिस्टर ओवर योर चेस्ट एंड रोम अबाउट लाइक दिस. ही केप्ट द रजिस्टर अंटिल यू गो. यू कैन नॉट सिंपली अब आप बताएं, आज तक मैंने किसी लड़की को बोला बेटा रजिस्टर रखकर फिरो? लड़के को बोला है. अब बताए, बोले लड़का बेचारा मजलूम है. यू कैन नॉट, यू कैन नॉट. प्लीज आप अपनी शर्ट्स वाली बात से तो बाहर ही आ जाए ना. ठीक है. अच्छा, और इनकी बात में एक करेक्ट कर दो इफ यू परमिट मी. इन्होंने कहा कि मतलब इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा है कि
वो जो शॉर्ट होती है ना, वो जो आपका फॉर्मल ड्रेसअप, उसके अलावा तो इंसान जिंदगी में फॉर्मल हो ही नहीं सकता। और वो ना कॉर्पोरेशन में जा सकता है वो फॉर्मल ड्रेसअप के बगैर, ना वो बेचारा प्रेजेंटेशन दे सकता है। आई एम सॉरी। जब आप ये देखें, इस वक्त मेरी आप ये शर्ट देख लें, खादी की शर्ट है, अच्छा है तो ये बेचारी नी लेंथ, अच्छा मैं पहन भी सकती थी मिड थाई। दो चीजों पे इनको करेक्ट करना चाहूंगी मैं। एक तो ये, अब आप पता है क्या मैं किसी गांव से उठी हुई लगकर आ रही हूँ आपको? आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट, यू नो, एंड आई एम अ रिसर्चर। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे जाती हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देती हूँ, मेरे 90% मार्क्स आते हैं। कहाँ मुझे टीचर फेल करता है? मैं बैंक्स में भी इसी ड्रेसअप के साथ जाती हूँ, दैट इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और मैं बैंक के छोटे मोटे उससे नहीं मिलती हूँ, मैं CFO से मिलती हूँ, मैं CEO से मिलती हूँ। अच्छा वो क्या करते हैं? मुझे निकाल देते हैं अपने उधर ऑफिस से, मुझे फॉर्मल नहीं समझता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, आप प्रेजेंटेशन इस तरह के ड्रेसअप में भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा इन्होंने ये कहा कि नी लेंथ टी शर्ट्स नहीं आती। बेटा हम नी लेंथ टी शर्ट्स आपको नहीं कहते, हम मिड थाई की बात करते हैं। और भी इसमें मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप देखें, अपने पूछें, आप गर्ल्स पे सर्वे करें इसके ऊपर, आप यकीन करें किसी के हिप्स भी कवर्ड होते हैं ना, मिठाई नहीं होती, ऊपर भी होती है, यकीन करें आई लेट हर गो। अभी मैम सबीना अगर ये सुनेंगे, हो सकता है मुझे बुलाकर मेरी क्लास लेने कि मैंने तो तुम्हें मिठाई बोला था, तुमने तो थोड़ी सी ऊपर भी होती है, तुम छोड़ देती हो लड़की को। देखिए देन आई यूज माई यू नो पर्सनल इंट्यूशन, एंड मैं उसमें ये देखती हूँ, इफ द फीमेल इज लुकिंग फाइन परफेक्ट, अगर बहुत ज्यादा वो टाइट क्लोथिंग नहीं है, देन आई लेट हर गो। एक आती है ना वो शर्ट आती है आपकी जो पीछे से राउंड होती है, आगे से भी राउंड होती है, अच्छा आई लेट हर गो। सीरियसली थोड़ा सा लूज ड्रेसअप होता है, बहुत ज्यादा वो आई कैचिंग नहीं होता, आई लेट हर गो। अब कहाँ गई पॉलिसी? वो तो पॉलिसी तो मैंने सबसे पहले तो मैंने इम्प्लीमेंट करने का वायलेट कर दी। तो देखिए इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग अपने, पहली बात है अपना आप जो है ना थॉट प्रोसेस को जरा बदले, ट्राई टू चेंज इट, ठीक है। इसको बदले, आप छोटी शर्टों से तो बाहर निकले, उससे आगे की भी सोचें। इट्स नॉट कि बिल्कुल आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि आई लेट देम गो। अब इसमें मुझे मैम सबीना बुला के बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर वो बिल्कुल डिसेंट होता है, मैं आई यूज माई ओन इंट्यूशन, ओन जजमेंट, एंड यू नो मैं उसको जाने देती हूँ। हालांकि वो मिठाई भी नहीं पहन रही होती है, वायलेट कर रही होती है। तो अब बताएं, स्टिल आई एम अ बैड पर्सन एंड आई एम प्राउड टू बी अ बैड पर्सन। मुझे यकीन करें मेरे कॉन्फिडेंस को, एवरीवन कॉल्स मी DC आंटी। बेटा कॉल मी CC आंटी, because the code of conduct is they call me inappropriate behavior auntie, call me any auntie, I love to be your auntie, I love to be your mother, ठीक है। क्योंकि but again professionalism। अच्छा मैम, तो ये मुझे कहने दें, बोले whatever your you know are things, I also got many things and grievances in my heart also, you see। So देखिए, calling an auntie, I love to be your auntie, your mother, anything, your grandmother maybe, अगर आप कहना चाहें, मुझे इससे कोई भी फिक्र नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप यंग 110% कॉन्फिडेंट ऑन वॉट एवर आई एम डूइंग। जो ये बातें अब मौकरी करता है सोशल मीडिया पे, मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, वो उसके अपने दिमाग का खलल है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर प्रोफेशनलिज्म आता है कि आप जो है, आप इंस्टीट्यूट के बाहर आप आंटी कहें, कुछ भी कहें, बट in a professional institute, do you think calling anyone auntie is good? You call your faculty an accounting uncle, a maths uncle, a marketing auntie. Do you call? No. This is not at all professionalism, and no leader, zero leadership qualities calling anyone auntie and uncle at this, you know, institute. Call ma'am, call sir. अब कहाँ गया आप लोगों का प्रोफेशनलिज्म? कहाँ गया आपका कॉर्पोरेट कल्चर? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही। दिस इज अ टू वे You see, you should, you give respect, you get respect. Should you know also the respect? Auntie is a respectful word. मेरी Yeah, बहुत but सारी you know aunties वो हैं। किस सेंस में कहा जाता है, you know लेकिन that. जिस भी सेंस में अपने उनके अपने दिमाग का खलल है, Yeah, मुझे तो यकीन करें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कुछ, ठीक है। तो उसको फर्क पड़ता है ना जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसमें एजुकेशन की कमी होती है, इसमें पैसे की कमी होती है, उन लोगों को फर्क पड़ता है। Yes, मुझे ma'am, इन बातों से कोई फर्क नहीं completely पड़ता। agree कि ये वो तो उनके बिल्कुल अपने ही दिमाग का खलल है, unacceptable है। अपना मेंटल लेवल है, which they are demonstrating themselves। अच्छा मैम, एट द एंड अगर हम ये बोलें कि डिसेंसी परसेप्शन बेस्ड है और उसी के तहत डिसेंट क्लोथ्स क्या हैं वो डिसाइड होते हैं, ऐसे ही है? देखिए, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन परसेप्शन वैल्यूज। आप मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं ये चीज, ठीक है। हर एक की परसेप्शन डिफरेंट है। एक अगर आपने मार्केटिंग का कोर्स किया ही होगा, मार्केटिंग में ही है आप कस्टमर को उसकी परसेप्शन से देखते हैं, और हर एक की परसेप्शन डिफरेंट होती है। और
कोई भी इंस्टीट्यूट जब डिफरेंट, ये सिर्फ ड्रेस कोड पॉलिसी या कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, बहुत सारी और पॉलिसीज हैं. आप एग्जामिनेशन की पॉलिसी ले रहे हैं. अगर आप लिबरलिज्म की बात हो रही थी ना, अगर आप लिबरलिज्म कहें तो फिर बीच वेयर है. आप बीच वेयर पहन के आ जाए भाई, लिबरलिज्म है. आप एग्जामिनेशन में व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू. लिबरलिज्म का क्या मतलब है कि यू विल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं. क्या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करता है? बिल्कुल करते हैं. ऐसे तो जिन लोगों की वो ख्वाहिश है वो ऐसे इंस्टीट्यूट में चल जाए जिनकी कोई डिग्री की वैल्यू नहीं होती. IOBM की डिग्री की एक वैल्यू है. हम यहाँ पे लिबरलिज्म टोटली एग्जामिनेशन हॉल, वॉकवेज और यहाँ पर नहीं दे सकते हम टोटल लिबरलिज्म के. बेटा जो दिल चाहता है आपका करो. देखिए, ऐसा आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की परसेप्शन इज डिफरेंट एंड वी हैव टू कीप अ बैलेंस and we have to inculcate those things which are generally accepted with respect to our culture, our organizational, institutional and our country culture. और फिर रिलीजन की बात आप ले लेकर, रिलीजन से आप बहुत ज्यादा से परेशान हो रहे हैं, उसको आप उसमें ले लें. फिर वैसे तो रिलीजन को पहले आना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको, आई डोंट नो, इस पे तो मेरे कोई कमेंट्स होने ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रिलीजियस बातें करनी नहीं चाहिए. बेसिकली किसी भी कॉमन फोरम के ऊपर यू शुड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन. यू कैन टॉक अबाउट कल्चर मे बी एंड पीपल्स परसेप्शंस कमिंग बैक टू यू. सो एवरीवन हैज गॉट डिफरेंट परसेप्शन. हम ये नहीं कह सकते कि ड्रेस कोड पॉलिसी आपने किसी के परसेप्शन के मुताबिक बनानी है. हम ये भी तो देखते हैं ना और इंस्टीट्यूट्स ने कैसी बनाई हुई है. देखिए, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करे देन इट्स देयर प्रॉब्लम. ठीक है जी. एनीथिंग एल्स? आई थिंक हाफ एन आवर आपने मुझे दिया था और अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो एनी लास्ट क्वेश्चन आई वुड से. Manu, do you have something to add? Do you? Sure. I'll just say कि ma'am, I never said कि kurta shalwar and all that it's not professional. It is very professional. The thing is कि जो आपका एक formal tie अलग से भी है, that should be accepted as well. And आप Yeah, let's just agree to disagree here. We won't argue over that again. So this is just closing remarks, okay? So carry on. I agree there should be a code of conduct. Dress code policy institutions में होती है and you should follow because आप एक education institute में पढ़ते हो. But what is seen as inappropriate, as indecent, and the reasons why it's being called indecent and inappropriate, that should be changed. Okay, ma'am, do you have any closing remarks? इनके रिमार्क्स पे मैं कमेंट करूं या नहीं, आपके अपने क्लोजिंग रिमार्क्स. अच्छा, इनके तो जरूरी नहीं है, वरना मैं वो भी दे सकती हूँ. डोंट यू वरी. नहीं मैम, पर वो आपका टाइम है. देखिए, मैंने जो अभी कहा ना, आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ लॉन्ग आंसर एंड दैट एक्चुअली समराइज्ड आवर डिस्कशन एंड आई बिलीव दैट वाज ऑल आई हैड टू से. एंड बट इफ यू हैव अ लास्ट क्वेश्चन, more than welcome, I would be pleased to answer. मैम, मेरा बस एक छोटा सा सवाल ही है कि हमने 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन कर लिया. आई थिंक तो आई थिंक वी गॉट टू नो योर ओपिनियन, राइट? कि जो जोक्स बनाए जाते हैं आंटी, एंड यू नो वी विल ट्राई आवर बेस्ट एज स्टूडेंट्स एंड नाउ वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू. आई कैन से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आपकी मर्जी है. या लेट मी कंप्लीट. मेंटालिटी जाहिर हो रही होती है, मतलब आपके का मतलब है द वंस हू मेक, उनकी अपनी इससे हो रही होती है. और ये भी मैं आपको बता दूं, जहाँ जोक बनता है ना, वहाँ जहाँ अगेंस्ट बनता है, वहाँ फॉर वाले भी आए हुए होते हैं. एग्जैक्टली. तो मैम, वी गॉट टू नो भी बनते हैं. Yeah, we got to know that side कि है ना, it's a two-way street. You give respect, you get respect. And अगर management आपको वर्दी समझेगी respect की, तो they will ensure, जैसे कि आपने कहा, you fought for that policy के knee length नहीं mid thigh होना चाहिए, तो maybe it's a two-way street. We have to meet halfway, right? It was, you know, in the something in the middle के भाई, exactly. ये आप कर लें. हमने जैसे ये भी कहा सेक्युलर की तरफ और इस्लाम की तरफ हम नहीं जा सकते, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है. We have to find a midway. तो let's just keep it civil and let's just keep it productive. तो if I ask you कि मैंने जैसे आपकी एक साइड मानी कि है ना, नहीं होने चाहिए इस तरह के जोक्स, मीम्स, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, हमें हाफ में मीट करना चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, अब है पॉलिसी तो है, फॉलो करें. व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन जो आपको लगे कि नहीं, स्टूडेंट्स की बात भी, ये एक बात ऐसी जो इन्होंने सही कही, कोई एक बात ऐसी आज की कॉन्वर्जेशन से निकली? मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. ओके मैम. और दूसरा मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि होते हैं सबके अपने सेंटिमेंट्स होते हैं और हर्ट भी होते हैं लोग उससे. और आप जरूर बताइएगा, 208 इज माय सैक में ऑफिस, आप आइएगा इन पर्सन. एंड वो हो सकता है कि मैंने
क्या पता आपको अच्छा ना लगा हो, तो आई वुड बी सॉरी फॉर दैट, और आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. और मेरे ख्याल से बहुत पुरानी बात होगी जो आप कह रही जी हैं, मैम. आपकी नहीं but है, ma'am- बिकॉज आई हैव ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट. तो देखिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि आपके जो भी सेंटिमेंट्स है, जो चीज़ आप अप्रूव कराना चाहते हैं, यू कैन राइट टू द सीनियर मैनेजमेंट. हाँ, आप मुझे भी अंजुम.अजीज पे लिख सकते हैं, वो डेफिनेटली बीच में उसको एडिट नहीं करूंगी. एज इट इज आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड इट टू द सीनियर मैनेजमेंट. यस ठीक है, और फिर आपको भी उसका बाकायदा जवाब दूंगी कि जी उन्होंने ये कहा है. जी मैम, ठीक है, बिल्कुल. आपके अपने होते हो सकता है आपकी कोई चीज मानी भी जाए, जैसे कि जैसे मैंने कि ये कहा, कह रही है फॉर्मल ड्रेसअप वो होना चाहिए, तो हो सकता है सिर्फ वो माना जाए और वो क्रॉप टॉप्स और वो Yeah, जो exactly. बीच वेयर टाइप होता है वो माना ना जाए, फॉर्मल माना जाए. हो सकता है एक दिन आए. बिल्कुल तो आज मैम, लेट्स मैं होप भी फॉर दैट. करूंगी आज. अच्छा मैम, मैं ये कह रही थी कि बात हम ड्रेस कोड पॉलिसी की डिची कर देते हैं, तो अब फॉलो करनी है, ठीक है, इसको हम बॉटम लाइन बना लेते हैं. हम जो बेसिकली एज स्टूडेंट्स जो मैं पॉइंट आगे रखना चाह रही हूँ वो ये, इसको इन्फोर्स कराने का एक तरीका होना चाहिए. वी शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्टूडेंट्स, यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट. उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट होती है व्हेन यू कॉल हर आउट इन पब्लिक कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारे घर वाले अच्छा, तुम्हें ऐसे अब कपड़े मैं- पहने. तो वो थोड़े से रिमार्क्स थोड़े से अब पोलाइट मैं होने इस चाहिए. पर भी एक बात, मैं अपना Yes, yes, तरीकाकार sure. बता देती हूँ आपको. वैसे बहुत लंबा आपने टुक माई डे. ओके, मैं आपको इसका अपना तरीकाकार बुला देती हूँ. देखिए, मैं बाजों का ऐसा होता है, वन मेल एंड वन फीमेल इज आर गोइंग टुगेदर. मेरी कोशिश होती है अटमोस्ट टू कॉल द गर्ल ऑन द साइड. अच्छा, अब जो लड़के होते हैं ना वो बड़े दे वांट यू नो टू लिसन. मैंने कहा बेटा आपका कॉल, आपका कार्ड तो मैंने नहीं लिया ना, तो आप जाओ. नहीं नहीं, मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगा. अच्छा, उसे जरूर उसके, मैं आपको नहीं कह रही. अच्छा, नहीं मैंने तो इसके बगैर जाना ही नहीं, हम हमेशा से साथ ही रहेंगे. मैंने कहा बेटा जरूर, फिर साथ अपना कार्ड भी दे दो. अच्छा खैर, वो आप खुद सुनना चाह रहे हैं, तो मैं यकीन करें मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी के सामने जो है ना उसको कुछ ना कहूँ. अच्छा, और ये remarks हमारी किस तरह पॉलिसी से भी होते नहीं. हैं? देखिए, रिमार्क्स मेरे तो ये होते नहीं, मुझे तो समझ क्या कौन से रिमार्क्स ये बताएं. नहीं मैम, एक्चुअली ये मैनेजमेंट की तरफ से अगर हम बोले रिसेंटली पिछले किसी सेमेस्टर में, और ने कहा होगा, नहीं मैम, मैंने नहीं वो कुछ ऐसा कहा. वो तो कभी. ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में अगर कोई ऐसे रिमार्क्स आते हैं तो कंप्लेन करने का कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है. फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे कर दें कंप्लेन. नहीं, आगे मैं पहुंचा आपको रिसेंटली बताता हूँ. पिछले सेमेस्टर एग्जामिनेशन हॉल में एक लड़की बाय मिस्टेक दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में आ गई थी. पब्लिकली पूरे एग्जामिनेशन हॉल में उसको, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम हर्ट किया गया था. एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि पता नहीं कौन से गांव देहात से आप लोग उठ कर आए हैं, पढ़ने की तमीज नहीं है, माँ बाप ने ऐसी आपको यूनिवर्सिटी भेज मैंने नहीं दिया. कहा. आपने नहीं कहा. मेरा ना कहीं लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डायरेक्टेड नहीं है, आपकी तरफ से- मैनेजमेंट की management तरफ तरफ है. डायरेक्टेड है, आप बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, हम ठीक है. कंप्लेन लेकर कहाँ जाएं. ओके ओके. प्रॉब्लम ये है. अच्छा, वैसे कंप्लेन बॉक्सेस पे कभी मैम डाली complaint? डोंट, मैम, ये तो छोड़ ही देना. कि वो देखे भी जाते हैं नहीं शायद. देखे जाते. अच्छा, मैं आपकी, अगर आप इस फोरम के ऊपर मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देयर शुड बी समवन whom you can complain to, then for an appropriate person I can plead for you. सही you है. so much. अच्छा मैम, जैसे आपने स्टूडेंट काउंसिल की बात की थी, वो भी है कि हाँ ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं जी मैम, कि मैं ताकि formally- रिस्पेक्टफुल वे में हम एक इन्फोर्समेंट चीज हो रखें. सकती है. पॉलिसी, अब पॉलिसी तो है वो इन्फोर्स करनी है, बट उसको थोड़े रिस्पेक्टफुल वे में की जाए कि किसी की ना तजलील नहीं हो जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हो. ये भाई आप और that is very जैसे true and दोस्तों I- के सामने और एक लड़की यकीन को डांट करें, पड़ी मैं तो ये दैट इज बिल्कुल- वेरी मैं इस ह्यूमिलेटिंग. बात का खास ख्याल रखती हूँ. हाँ, अगर कभी हो गया या मानूर को कुछ बुरा लगा, दैट्स व्हाट मैं चाह रही हूँ कि ये आकर मुझसे डिस्कस कर लें कि इट्स ऑलवेज बेटर यू नो टू डिस्कस. ओके, इफ आई वुड बी ऑन द रॉन्ग साइड, मैं इनसे एक्सक्यूज करूंगी. तो बिल्कुल बिल्कुल ही होना चाहिए. आई ऑल्सो यू नो वांट टू करेक्ट माई सेल्फ. जहाँ मैं करेक्ट हो सकती हूँ तो मैं ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी. आई एम वेरी open to improvements. I think I'm done with all this now. Thank you so much, Manu. Thank you so much, ma'am. Anjum. Okay, thank you so much. Thank you, Manur. This has been a very productive conversation. तो आज के एपिसोड को हम थोड़ी सी तलबा और मैनेजमेंट की चीख के साथ कंक्लूड करते हैं. If you have something more to add to this conversation, please drop a comment. We will be back with another episode soon, inshallah. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.